students, I'm Jyoti Kohli and this is my third video of part of speech. And in the part of speech, everybody knows what is it, the part of speech. Part of speech, 8 part of speech. First is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, interjection and conjunction. And the today's topic is noun. And here I'm going to explain about the noun. Noun is a name of a person, place, thing is called noun. And everybody knows if this is to be taught in a class 3rd or a 4th standard. But for the basic class, I am taking this noun of a person, place, thing, considered to be a noun. Example, I have already taken name of anybody, particular name of anybody. Like let's say I am taking name of Rohit or taking name of any particular place. Let's say Agra, Delhi, Thor. It is already mentioned, but it has further segregated in different 5 parts. ये मैं बेसिक बात आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं छोटे से लेके फंडामेंटल्स तक लेके जाऊंगी. फंडामेंटल्स जो बड़ों के काम आता है, ये छोटे बच्चों के लिए मैं क्लास को बता रही हूँ. फंडामेंटल्स में क्या होगा, उसमें प्लस बेसिक में क्या होगा. देयर आर 2 डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड दिस, बट फर्स्ट यू हैव टू कम टू नो व्हाट इज द बेसिक noun. Noun is further segregated into proper noun, common noun, collective noun, materialistic noun and the abstract noun. Now come to the proper noun. Proper noun, specifically if somebody is standing in a group, I would like to with that telling you the difference between the proper noun and the common noun. If your friend, आपका दोस्त खड़ा है और आप एकदम नाम भूल गए हो, you can't say, boy listen to me, whom are you calling them? You don't know whom are you calling. If you know, immediately know the name of that person. Let's say Ravi, let's say Sita, come here. So Sita is a proper noun, and if you say boy or a girl, come here, the girl is a common noun. So with that I am telling you the difference. Proper noun names particular person, place or a thing. Bhopal, the Ganga, the Himalaya. This is the particular noun or a proper noun. And the common noun categorize of a place or a thing or a person of a one kind or a some class, like teacher, school, boy. Teacher, which teacher? कौन सी टीचर? आपने नाम को डिस्क्राइब नहीं किया हुआ. जब तक आप किसी सब्जेक्ट टीचर का नाम, किसी के नाम के बारे में, किसी के बारे में नहीं बताओगे, तब तक वो कॉमन ही कहलाएगा. अगर आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया, देन यू कैन से दिस इज द साइंस टीचर एंड द साइंस टीचर नेम इज अनुभा. अनुभा इज अ कॉमन नाउन. और इफ यू से टीचर, टीचर इज अ कॉमन नाउन. आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस ऑफ दीज 2 थिंग्स, राइट? देन कम टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. योर टीचर हिट यू बैडली and you felt bad, you hurt, and when your emotions is categorized in a abstract noun, which cannot be touched, which cannot be felt. These concept of a person or a situation or thing that considered, that comes in a abstract noun. Abstract noun क्या होता है? जो वो भाव जो हम महसूस करते हैं, जो हम टच नहीं कर सकते, जो हम सिर्फ और सिर्फ एहसास कर सकते हैं, जो हमारे मन के भाव होते हैं, that is called a abstract noun. And now come to the materialistic noun. Materialistic noun or material noun is a non-living thing जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. एंड सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट्स जो हम बोल रहे हैं कि जैसे हमने शुगर है, शुगर को मिक्स किया, सॉल्ट है, सैंड पेपर है, वट एवर, फर्नीचर है, दैट इज अ मटेरियल. हमने उसको छू के देखा है, राइट? दिस इज कंसिडर्ड टू स्टील है, सिल्वर है, गोल्ड है. दिस कंसिडर्ड टू बी अ मटेरियल नाउन, राइट? नेक्स्ट वन इज अ कलेक्टिव नाउन. किसी भी चीज का झुंड, समूह, ग्रुप, दैट कंसिडर्ड टू बी अ collective noun. Herd of people, herd of animal, ठीक है? Shoal of fish,
This is considered to be a collection of things, people, that is called a collective noun. Now I would like to tell you the further division. These are the basic concept. Now little bit further I am going to take. Noun can further be classified into different part. Like it is a countable also, it is a uncountable also. Countable means singular भी होता है, plural भी होता है. Singular होता है like जैसे सपोज मैंने कह दिया मैन, मैन को हम सिंगुलर भी करेंगे तो मैन का मैन हो जाएगा, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर दिया. अब हमने इसको प्लूरल भी बनाया, सिंगुलर भी बनाया. अनकाउंटेबल मैंने बोला, व्हाट इज अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल मीन्स हैप्पीनेस, वी कांट काउंट इट. sorrow, we can't count it, we can just express our feeling only. Anger, we can't count कितने उसके भाव आए, just express your feeling only, you can't count those feelings, right? Sugar, we can't count that sugar at that moment, right? Sugar is uncountable, so it is a plural. Now come further, noun can also be classified as follows, like masculine, feminine, common and neutral. Masculine में ही, नाम में ही छुपा हुआ है. It names the male noun like a person. Boy, lion, actress. Masculine हुए, that is considered to be a noun. Same ऐसे ही हम बोलेंगे feminine. Feminine gender जो गर्ल्स के नाम होते हैं, that is called a feminine. Lion का lioness, actor का actress. It is written over here. So very prescribedly, very precisely I have described over here. With example I have mentioned here feminine gender. Common gender जैसे हमको बोला हमें डॉक्टर के पास जाना है, किसके पास जाना है? अब कॉमन मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है. बट हियर आई एम सेइंग आई हैव टू गो टू द, हैव टू कंसल्ट, आई हैव टू विजिट टू द डॉक्टर. बट आई हैव नॉट प्रिसाइसली मेंशन्ड the doctor is a female or a male, right? I have to visit to the artist. Artist is a lady or male, कोई भी हो सकता है, ठीक है? So friend, मैंने नहीं बोला कि मेरे को अपनी, मेरा फ्रेंड गर्ल है या बॉय है. So it's a common gender, right? अब न्यूट्रल जेंडर के बारे में बता रहे हैं. न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? जैसे कि it names the noun that are neither male nor female, like book or a pen. Now I'll come to tell you one thing. आपको मैं एक और बात बताती हूँ. अब हमने ये तो लिख दिए नाउन. अब नाउन में ही हम बताते हैं कि नाउन को हम नॉमिनेटिव केस में भी लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में भी लेते हैं. ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही हम उसको कॉजिटिव केस भी कहते हैं. अब नॉमिनेटिव केस और कॉजिटिव केस क्या होते हैं वो भी मैं साथ में ही आपको बता रही हूं. वो क्या होते हैं? जैसे नॉमिनेटिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर लिख देती हूँ. एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रही हूं, माई फ्रेंड came late in the party. My friends came late in the party. Right. So my friends, this is a subjective case, comes before the verb. This is a verb, comes before the verb. So this is the subjective case. अगर हम इसे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दिस इज द, मेरे फ्रेंड्स कब आए? पार्टी में लेट है, तो पार्टी इज द ऑब्जेक्टिव. किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें दो केस चाहिए होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, राइट? सो हियर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. आई डू होप, थैंक यू वेरी मच, आई डू होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार बच्चों,
आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। पद परिचय क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं पद का मतलब क्या है, पद का अर्थ क्या है। इसे शब्द कहते हैं, लेकिन जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो उसे कहते हैं पद। तो आज हम संज्ञा के बारे में बात करेंगे कि संज्ञा कैसे पद में प्रयोग होती है। संज्ञा कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या क्रिया का नाम संज्ञा कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, पशु, पक्षी, स्थान, नाम, दादा, नाना, हंसना रोना भाव हो गए, भागना मारना क्रिया, ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, साहिल प्रथम आया। इसमें साहिल क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति यानी इसका नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आगे बताऊंगी संज्ञा के भेद। अब देखिए, प्रथम आया यानी प्रथम आया यह क्रिया हो गई। अब देखिए एक उदाहरण और देखिए, दौड़ते हुए वह घर गया। ये पूरा एक वाक्य है, इसमें सब कुछ आएगा। साहिल प्रथम आया, दौड़ते हुए घर गया, खुशी से माता पिता को बताया, सबने मिठाई खाई। यहाँ पर साहिल व्यक्ति हो गया, उसका नाम है, क्योंकि प्रथम आया क्रिया हो गई, दौड़ते हुए भी क्रिया हो गई, घर स्थान, घर गया यानी घर गया, घर एक स्थान हो गया, खुशी भाव, और माता पिता जाति हो गए, मिठाई वस्तु हो गई। तो इस एक वाक्य में देखिए संज्ञा सभी आ गई, संज्ञा के भेद। अब मैं आपको बता देती हूँ संज्ञा के भेद क्या हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक, 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक, जिस शब्द से विशेष नाम यानी विशेष, आप नोट कर लीजिए, विशेष स्पेशल, जिस शब्द से विशेष नाम, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति का बोध हो वह कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण देखिए, भारत एक नाम है देश का, हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत नाम हो गया, यह हो गया व्यक्तिवाचक। सचिन नाम है, रामायण नाम है, ये हो गए व्यक्तिवाचक के उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिस शब्द से जाति का बोध हो। जाति उदाहरण है, जैसे कार, वाहन की एक जाति हो गई कार। जैसे शेर, पशुओं की एक जाति हो गई शेर। टीवी, यह भी एक जाति हो गई। तो ये हो गए जातिवाचक संज्ञा। अब भाववाचक देखिए, भाव में क्या होता है? गम, खुशी, सुख, दुख, ये सभी भाव हैं। क्रोध, हिंसा, ये सभी भाव हैं। गर्मी, जवानी, मिठास, यानी जिस शब्द से दशा का पता चले, मनोदशा क्या, हमारे अंदर भावनाएं किस प्रकार का भाव है, वह कहलाती है भाववाचक संज्ञा। इसी तरह देखिए समुदाय, समुदाय बोलते हैं समूह को, जिस शब्द से वर्ग का पता चल जाए या समूह का ज्ञान हो। जैसे ढेर हो गया, गट्ठर हो गया, ये एक वर्ग है, एक समूह है, समुच्चय है। सेना, सेना वर्ग है। पुस्तक, पुस्तक वर्ग है, पुस्तक के अंदर बहुत सारे पाठ समाये हैं। तो ये हो गए समुदायवाचक, ये उदाहरण है। द्रव्य बोलते हैं पदार्थ, उसमें जड़ चेतन पदार्थ होते हैं। जैसे जो शब्द पदार्थ हो गए, धातु हो गए, इसमें जड़ आते हैं, चेतन नहीं, जड़ शब्द। जो शब्द पदार्थ, धातु, द्रव्य को दर्शाते हैं, जैसे गेहूं, तेल, दूध, ये सब, और धन, ये भी द्रव्य। द्रव्य वैसे धन, द्रव्य का अर्थ धन होता है, लेकिन यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा में ये शब्द आते हैं। अब मैं आपको संज्ञा के विकार बता देती हूँ। विकार का मतलब है परिवर्तन। जब संज्ञा बदलती कैसे, कैसे उसका रूप परिवर्तित होता है, तो इसको बोलते हैं संज्ञा के विकार। इसमें मैं आपको बताऊंगी लिंग, वचन और कारक। सबसे पहले मैं बताती हूँ लिंग, जिस रूप से लिंग का पता चले। जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, 3 तरह के लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग वह है जो स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त हो, जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चले, बोध हो, जो शब्द बोध कराए स्त्री जाति का, वह कहलाती है स्त्री जाति। देखिए कोठरी, नीली, लुटिया, ये कुछ मैंने खास निकाल के रखे हैं आप लोगों के लिए। हिंदी, नदी, प्रार्थना, तीज, ये सब स्त्रीलिंग है। जैसे कोठरी, खाली कोठरी, नीली, नीली कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि नीली चादर, लुटिया में पानी, लुटिया गीली, लुटिया भर गई, हिंदी भाषा है। नदी बह रही है,
देखिए ये सब स्त्रीलिंग है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना मीठी है, तीज आई है। अब आप कहेंगे तीज तो त्योहार है, इसको पुल्लिंग होना चाहिए। नहीं, आज तीज का त्योहार आया। जब आप त्योहार लिखेंगे तो वो हो जाता है पुल्लिंग, लेकिन आज तीज आई है तो ये हो गई स्त्रीलिंग। इस तरह पुल्लिंग होते हैं जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह होते हैं पुल्लिंग। जैसे भारत, हमारा देश भारत है, पुल्लिंग। जून का महीना आया, सूर्य चमक रहा है, प्रेम, दुख, गाल, गाल लाल हो गया, गाल गीला हो गया, गाल। तो प्रयोग जब वाक्यों में करते हैं तब पता चल जाता है, तो ये पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे प्राण, उसके प्राण निकल गए, उसकी प्राण निकल गई कभी नहीं बोलते। उसके आंसू आ गए, उसकी आंसू आ गई, गलत है ये। कीचड़ में गिर गया, कीचड़, वहाँ कीचड़ है, वहाँ कीचड़, ये भी एक पुल्लिंग है। कीचड़ को पुल्लिंग की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग कीचड़ पुल्लिंग की तरह होता है। अच्छा देखिए, कुछ मैं आपको बताती हूँ। उभयलिंग कौन से होते हैं? जो स्त्री पुरुष दोनों का बोध कराते हैं। विशेषकर पद होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पद हो गया, राष्ट्रपति पद हो गया, मुख्यमंत्री के पद हो गए, ये सब उभयलिंग। क्योंकि प्रधानमंत्री स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी। इसी तरह राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, ये सब स्त्री पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। तो ये आप ऐसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्रिणी, राष्ट्रपतिनी, गलत। ये पद हैं, ये उभयलिंग कहलाते हैं। और मैं आपको कुछ भिन्न रूप बताऊंगी। देखिए, जैसे आप कहेंगे लड़का का लड़की बन जाता है स्त्रीलिंग में, है ना। लेकिन कुछ भिन्न रूप ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बदलते हैं। जैसे कवि, इसका बदल जाता है कवयित्री। स्पेलिंग यानी इसका देख लीजिए, अब मैंने कैसे लिखा है इसका, कवयित्री। ये आप नोट कर लीजिए, ये लोग बहुत गलत लिखते हैं। पिता का माता, भाई का भाभी या भावज, वर का वधू, नर का मादा, विद्वान का विदुषी। ये देखिए आप। इसी तरह मैं आपको वचन बताती हूँ कि जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो वह वचन कहलाता है। जैसे एक वचन, बहुवचन, ये दो तरह के वचन हैं। किसी एक व्यक्ति या वस्तु का जो बोध कराता है वह एक वचन होता है। जैसे लड़का, घर, पुस्तक, ये सब एक वचन हैं। ऐसे देखिए बहुवचन, जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो जिस रूप से, वह कहलाता है बहुवचन। जैसे आँखें, दवाइयाँ देखिए, मैंने खास तौर पर लिखा है। लोग इसको जब लिखते हैं गलत लिखते हैं, बड़ी या बड़ी की मात्रा लगाते हैं। नहीं, जब एक वचन से बहुवचन होता है तो ये बड़ी की जो मात्रा वो छोटी में बदल जाती है। ये आप खास तौर पर ध्यान रखें। ऐसे ही जो बड़े ऊ की मात्रा होती है जब बहुवचन बनाते हैं तो वो छोटे ऊ में बदल जाती है। जैसे वधू, वो वधू ए बन जाएगा जब बहुवचन होगा। दवाइयाँ, ये खास तौर पर ध्यान रखें। गुरुजन, देखिए आप कहेंगे बहुवचन कैसे है? क्योंकि एक गुरु नहीं, जब बहुत सारे गुरु आए हों तो हम कहेंगे ना गुरुजन। अब देखिए बहनों, आप कहोगे इसमें आपने बिंदी क्यों नहीं लगाई? नहीं लगेगी, इसमें बिंदु नहीं लगेगा क्योंकि जब आप उच्चारण करते हैं, ये बहुवचन हो गया। हम सभी बहनों को कहते हैं बहनों, आप सुनिए, तो बहनों, इसमें बिंदी नहीं आएगी, बिंदु नहीं आएगा ऊपर। यहाँ पर ये आप देख ले, इस तरह लगते हैं, तो ये बिना इसके कहते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो कहते हैं बहनों। अब मैं इसके विशेष नियम बता देती हूँ बहुवचन के, कि गांधी जी सच्चे थे। यहाँ गांधी जी सच्चे थे, आप कहेंगे क्यों लगाया? ये तो गांधी जी एक व्यक्ति, महात्मा गांधी जी हैं। क्योंकि हम उनको, जब हम किसी को सम्मान पूर्वक कहते हैं तो तब हम उसको बहुवचन में बदल देते हैं। गांधी जी सच्चे थे, ये उनको सम्मान दिया गया। ऐसे गुरु जी आप आए, तो ये उनको सम्मान दिया गया, इसलिए हमने इनको बहुवचन बना दिया। ऐसे हस्ताक्षर, आप अपने हस्ताक्षर कीजिए, आपके हस्ताक्षर सुंदर हैं। आप ये नहीं कहेंगे आपका हस्ताक्षर सुंदर है, नहीं। प्राण, उसके प्राण हर लिए, यमराज ने उसके प्राण हर लिए, प्राण हर लिए। यहाँ ऐसे नहीं यमराज ने उसका प्राण हर लिया, नहीं। दर्शन, उनके दर्शनों के हम अभिलाषी, या उनके दर्शन हुए हम धन्य हुए, ये भी बहुवचन है। अब देखिए कुछ मैं एक वचन बता देती हूँ, खास तौर पर आप ध्यान दें। जनता एक वचन, वर्षा एक वचन, पानी एक वचन। जबकि आप कहेंगे जनता में खूब सारे लोग हैं, वर्षा में खूब सारा पानी, पानी अपने आप में बहुत सारा पानी है, लेकिन ये एक वचन। जनता आई, वर्षा आई, पानी आया।
तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाया। और अब मैं बताती हूँ संज्ञा के कारक। क्रिया करने वाला, आप ध्यान दें, क्रिया करने वाला कारक कहलाता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से जो संबंध है, वह कारक। यहाँ विशेष क्रिया को ध्यान रखिएगा आप। देखिए, मैं आपको बड़ा आसान समझाती हूँ, आप बोलकर गाएंगे, आपको याद हो जाएगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, जुदाई, अधिकरण में, पेपर, संबंध, काके की, संबोधन, हे अरे। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। कर्ता ने, मोहन गया, कौन गया? मोहन। कर्म को, उसे देखो, उसको, यहाँ पर उसको यानी उसको देखो, उसको, ये हो गया कर्म, उसे में। करण ये छुपे हुए होते हैं, ये आपको याद रखना जरूरी है। करण से, चाकू से काटो, चाकू द्वारा यानी करण से या द्वारा। संप्रदान के लिए, पढ़ने के लिए गया, वह क्या करने गया? पढ़ने के लिए। यहाँ क्रिया पर आप लोगों ने ध्यान देना है। अपादान से जुदाई यानी अलग हो जाना। देखिए, दो से हैं, करण में भी से है, अपादान से में भी, लेकिन ये करण में द्वारा वाला है, ये अपादान जुदाई वाला या अलग वाला। पेड़ से पत्ते गिरे, किससे पत्ते गिरे? पेड़ से, पेड़ से अलग हुए, तो ये अपादान हो गया। ऐसे देखिए, अधिकरण में, पेपर, पेड़ पर चिड़िया बैठी, मेज पर पेन रखा था, मेज पर पेंसिल है। तो पेंसिल, पेन, चिड़िया कहाँ पर हैं? पेड़ पर, मेज पर, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक। संबंध देखिए, उसका, उसके, उसकी, यानी तुम्हारा मित्र। इसमें आप कहोगे काके की तो नहीं लगा, लेकिन मित्र किसका? तुम्हारा, तुम्हारा, तो ये इसमें छिपा हुआ है। ऐसे संबोधन में हे अरे कहेंगे, हे सखियों आओ, हे मित्रों आओ, लेकिन यहाँ मैंने खाली मित्रों, देखो बिंदु नहीं लगाया, मित्रों, ये हम बुला रहे हैं, किसी को संबोधन कर रहे हैं, तो इसमें हे अरे ना भी लगाएं तब भी ये संबोधन कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान एवं साहित्यिक विधाएं इस चैनल पर पढ़ाई जाती हैं। आप anjuduagemini@gmail.com पर अपने विचार बता सकते हैं और आप क्या पढ़ना चाहें आप हमें अवगत कराएं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।